विद्यापीठना सपना सारवनारा અમે જ્યોત જલાવી સૃષ્ટિના ભલે સહસા સર્જનહારા શ્રી સયાજી વિદ્યાપીઠના જ્ઞાનદીપને કરનારા શ્રી સયાજી વિદ્યાપીઠના જ્ઞાનદીપને On behalf of Faculty of Management Studies, I would like to welcome the sir. Thank you so much, sir, for coming here. And now I hand over the stage. You can start that. ऊपर का Good morning. मॉर्निंग जितने जवान हो उतनी आवाज नहीं है. Good morning. Yes. No. I always say that rather than good morning, we are good. We are studying in this such a prestigious university college. Definitely we are good. But we should be happy, and that happiness is the journey of the thing. We all keep on searching the happiness, and we feel that happiness is tomorrow. Happiness is on somewhere after. If I get my MBA class admission, then I'll be happy. But then after getting MBA admission, you feel that okay, now placement will be there, then I'll be happy. Okay. Then after placement you will feel that okay, promotion will be there, then I'll be happy. If I get married, then I'll be happy. But happiness is inbuilt in ourselves, and every day you have to be happy. So that today's topic which we are going to discuss, that is on self-management. You have heard the word, rather you have studied the word subject management. You are from management. What is management? What is the management? Management is management. Yes, लोगों को मैनेज करना. Is it so? Okay. मेरे को यहीं खड़ा रहना पड़ेगा. नहीं सर चलेगा चलेगा. तो लोगों को मैनेज करना, ठीक है? But really, can you manage people? Is your father is able to manage you? Eh? Are you able to manage your girlfriend, boyfriend? Eh? No. So who can you manage? We are in a regulated society, we are in a regulated organization, so that regulation manages the people. And we have to manage ourselves. If we manage ourselves, then only we will be able to manage others. And that is the problem with the today's management classes. That we have been keep on teaching our students. We have borrowed this philosophy from the Western world before 200 years back, and the same philosophy we are continuing teaching one another way, and we have made the pupil as a manager rather than leader. One of the difference between manager and leader
You might have studied so many differences, but what I feel that a manager tries to manage the people, and but a leader manage himself and then leads others. That is the difference between management and leading. So, this character building, I was given to this understanding that this your 5 days or 7 days session is basically on character building and how you grow in the world, rather than what you are going to get your marks. Marks doesn't make much difference. Marks will make only difference कि यहाँ पे जो गोल्ड मेडल मिलेगा वो किसको मिलेगा. Sometimes it may have a little bit impact on your placement, but how you are going to grow in the society, that your growth will depend upon how you are going to manage yourself. So that is the reason. Okay, you can go next. So you have to manage yourself. Next slide, we just. Okay. Rather you can come to first slide. First, वो जो डॉगी बना. Okay. So what is self management? Is managing yourself. ये कुत्ते की पूछ है, अपनी पूछ को खुद मैनेज करना है, उससे अपनी गर्दन को बांध के रखना है. दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट सो सेल्फ मैनेजमेंट इज योर प्लानिंग, योर स्ट्रेटजी. ओके, and within the autonomy given to you in the organization, in the society, you manage yourself and then you impose yourself, okay? Or rather you prove yourself that I am the leader of this organization, I am the leader of the society, I am the leader of this, and then you manage yourself. एक बोर्ड भी था मैं आपको, यहाँ बोर्ड रहता था, हटा दिया, चलो कोई बात नहीं. मुझे लगा था शायद हाँ बोर्ड था यहाँ पे. सर ये ओके. So when in this chapter, in this class, we'll be discussing 3 aspects. Okay, one is regarding your self. Okay. Then, while teaching, I try to teach with the help of some stories, so that you can connect with your this self. Whatever teaching is there, you can connect with your this. So, story of today we will go for the story of Ramayana. Story of Ramayana. And for this understanding this self, we'll go for Bhagavad Gita. Because I have been given 1 hour time, so I'll try to complete it. Time क्या हो गया है? So we'll try to learn this self and then story of with the help of Ramayana. The life is a basically journey of this self to this self. हर आदमी को ये बनना चाहता है, ठीक है? आप एक छोटे से आदमी हैं एंड आप 10 सेल्फ बनना चाहते हैं. यूनिवर्सल के लिए आप यूजफुल है कि नहीं है, आप जो सोसाइटी है उसके लिए कितना यूजफुल है, वो आपका बेसिकली 10 सेल्फ है. ठीक है? दैट हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट और हाउ यू आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दिस सोसाइटी. ठीक है? सो दिस टुडे सेशन we will be going for this self and with the help of understanding. Okay. So first, let us understand this self, ourself. Okay. How we are controlled. How you have come to this class
डूइंग MBA? क्यों आया, कैसे आपने, कैसे, क्यों डिसाइड किया आपने, क्यों डिसाइड किया है? यू थॉट कि MBA करने के बाद हमें जो है एक अच्छा जॉब मिलेगा, ठीक है, एक अच्छा जॉब मिलेगा। तो आपका ये जो एक्शन है, ठीक है, दिस एक्शन इज गोइंग टू डिसाइड योर डेस्टिनी, ठीक है। अब अगर ये एक्शन जो आप यहां आए, इसमें से कुछ बच्चों ने बीच में छोड़ दिया, ठीक है, क्यों छोड़ा होगा? जब वो यहाँ आए होंगे तो उनका एक एटीट्यूड डेवलप हुआ होगा, यार बेकार आ गए यहाँ पे, इससे अच्छा तो अपना जो दुकान चल रही थी उसको कर लिया होता, तो उसमें अभी पैसा मिल रहा है, ठीक है भाई, पापा की दुकान चल रही है, उसमें अभी तो पैसा कमाने का दिन है, 2 साल यहाँ क्यों खर्च कर, ठीक है। सो योर थॉट डेवलप योर इमोशंस, and your emotions develop your attitude, okay, your attitude develops your action, that yes, I need to do this, okay, and when you develop this, you do the action, this action leads to your result. So who is the responsible person for this? Your thought. So if you manage your thought, you will be able to manage your action. You will be able to manage your destiny. So what you need to manage? Your thought. Now, in leadership, leadership कैसे होता है? ये वन पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज इन द लाइफ यू नीड 4 Q's, ठीक है। 4 Q's आर IQ, EQ, PQ and SQ. IQ, EQ, PQ and SQ. How many have you heard all these 4 Q? Can? Yes, okay, 1%. IQ you know, ये तो कॉमन है, इंटेलिजेंस को है, ठीक है। 120, 130 कितना है आपको? That is IQ. EQ is your emotional quotient. PQ is your physical quotient. SQ is your spiritual quotient. Now we will discuss one by one all these quotients and then we will come to the Ramayana story Ramayana. Okay? So this IQ, EQ, PQ and SQ. Recently, result of IAS has been declared. You must have heard the name of the toppers. Last year also, name of the toppers. And you must be hearing these names from your at least class 8. Because by that time you must have known कि IAS कुछ होता है और मुझे IAS बनना है या कुछ बनना है, ठीक है? And you have completed around 8 to 10 years after your class 8. Am I right? Yes, sir. These toppers, all these toppers, where are they? Are you able to remember their name? No. They were having highest IQ. But probably they were not grown as desired. Rather, the student who was 3rd class, rather in the bottom of the list, he might be the DM or SSP, DM or SSP, okay? And उसका नाम आपको सुनने में आ रहा होगा,
कभी कभी किसी न्यूज़पेपर में कि ये डीएम ने ऐसा कर दिया, ये एसएसपी ने ऐसा कर दिया, एंड द पर्सन हु वाज इन द टॉप लिस्ट is not has gone out of the context. Okay. So how this has happened? The important part is emotional quotient. What is this emotional quotient? How you connect with the people. Okay? A leader is the one who is able to connect with the people. How you develop that, how people are connecting with you, और कैसे आप उनको अपने एक, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अभी मैं किसी बच्चे आप लोगों को डिस्कस कर रहा था दैट राम की पत्नी सीता का किडनैप हो गया, ठीक है? राम की पत्नी सीता का किडनैप हो गया, तो अगर वो जाते लोगों के पास, सुग्रीव के पास, हनुमान के पास और बाकी लोगों के पास जाते और बोलते कि भाई भाई मेरी वाइफ को कोई ले गया, ठीक है, चल मेरी वाइफ को छुड़ा के लेके आते हैं, कितने लोग जाते हैं उनके साथ? जाते क्या? नहीं जाते ना। उन्होंने क्या कहा कि देखो ये जो दुष्ट है उसमें से एक दुष्ट, सबसे बड़ा दुष्ट बाली और दूसरा रावण, ठीक है? ये दुष्ट बाली और रावण, ये और इनकी टीम सभी की पत्नियों को, सभी बेटियों को, सभी बच्चियों को उठा ले जाते हैं, ठीक है? एंड लेट अस फाइट अगेंस्ट दैट सो दैट योर डिजायर यू हैव कनेक्टेड विद द पीपल, एंड हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल, एंड इसीलिए राम के साथ वो बानरों ने या जो भी वहां भील, जो आदिवासी, सब उसके साथ कनेक्ट, एंड एवरीबडी स्टार्टेड फाइटिंग. सो एज ए लीडर व्हेन यू गो टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आफ्टर योर प्लेसमेंट, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द सोसाइटी, देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस. ठीक है, merely by having best IQ, highest IQ, you will not get success. Okay? Then comes physical quotient. Physical quotient means आपकी बॉडी को सुरक्षित रखना है. Who will do this all action? Your body, your mind. If your body is not there, you are sick. Can you do it? You cannot do it. So morning में आप लोगों ने योगा किया. What is that? You are maintaining your body. Then spiritual quotient. Spiritual quotient क्या होता है? Spirit. It has nothing to do with the dharma, religion. It is with your spirit. कि आपका दिल बोलना चाहिए कि ये सही है. ठीक है? अगर आपका दिल ये नहीं बोलता कि ये सही है, और आपने अपने दिल को मार करके, दिमाग से काम करके कोई गलत काम किया, then you cannot get success. In the career of a person, कोई भी आदमी बहुत ग्रो करता है, ठीक है? तो उसको क्या क्या चाहिए? Let us take an example of our Prime Minister. ठीक है? There are several criticisms of the Prime Minister. I appreciate that criticism, but for this teaching, we will take an example of a Prime Minister. Okay? His IQ is how much? He said, कभी मैं 4वीं पास हूँ, कभी 10वीं पास हूँ, ठीक है? कभी मैं एंटायर पॉलिटिकल कैरियर से पास. अलग अलग उन पे कमेंट आते हैं कि कितना पास है. Is that going to make any meaning? No. उससे ज्यादा पास वाले तो उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है? उससे ज्यादा पास वाले, उससे ज्यादा पढ़े लिखे, उससे ज्यादा IQ वाले तो उसके चपरासी हैं, उसका बाबू है, ठीक है? जो IAS ऑफिसर है वो है, ठीक है? So how he is able to handle this? He is able to get this connected with the people. He knows what is the crux of the people. कैसे हम कनेक्ट करें, and he knows how to connect the people. And once he is able to connect the people, he becomes the leader. ठीक है?
Then physical quotient, he maintains his physics, ठीक है, योगा करना है, जो भी करना है, ठीक है, क्या खाना है, क्या पीना है, so that probably we are not that young, जितना वो कर लेते हैं, ठीक है. Then spiritual quotient, the best part of Mr. Narendra Modi, ठीक है, that nobody is still able to blame. People say that yes, Adani, Ambani, all this things, but nobody is able to blame that he is a characterless. Nobody could do it till now, ठीक है. Nobody could prove that ये पैसा खाता है, ठीक है. तो आप जो है ये दिस इज एक और एग्जांपल देता हूं मैं. अन्ना हजारे सुना आप लोगों ने देखा, ठीक है. अन्ना हजारे इज 8वीं पास, 8th पास, ओके. तो ऑब्वियसली आईक्यू तो नहीं होगा, या आईक्यू बहुत लिमिटेड होगा, बट ही वाज नोइंग कि करप्शन इज इशू एंड टुक दिस इशू एज ए लीडर. सो और पूरी गवर्नमेंट कांग्रेस की हिलाती है, ठीक है. फिजिकल क्वेश्चन, अन्ना हजारे एट द एज ऑफ 73 जब वो भाग रहे थे, जब वो महात्मा गांधी के शांति स्थल पे गए, तो वो जब भाग करके गए जाकर के, तो वो जो पुलिस वाले थे जो कि जिनका पीक्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था, वो उसके बराबर दौड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है. और स्पिरिचुअल क्वेश्चन 100%. सो इन द लाइफ आपका आईक्यू थोड़ा कम होगा, आईक्यू का वैल्यू जो है केवल 20% की है, ठीक है. मैक्सिमम 20%, दैट टू आई एम हायर साइड. 10 to 20% आईक्यू बहुत है, ठीक है, सक्सेस के लिए. दिस यूनिट 80 to 90%. फिजिकल क्वोशिएंट यूनिट फॉर एग्जिस्टेंस लेवल, आपका शरीर चलना चाहिए, दैट इज, तो ये एग्जिस्टेंस लेवल है. बट स्पिरिचुअल क्वोशिएंट आपका 100% होना चाहिए. एंड ये जो मन है, ठीक है, जो अब मैं अपने ओरिजिनल मैनेजमेंट आता हूं, ये जो मन है ये क्या करता है, हमारे इश्यू को मारता है, ठीक है. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बोर्ड से सीख लिया, क्लास में सीख लिया, पढ़ लिया, लेकिन यहां मन करता है कि जो है कुछ है, खराब होना है कुछ, या चलो कुछ पैसा कमा लेते हैं. कोई देख तो नहीं रहा ना. तो ये जो स्पिरिचुअल क्वोशिएंट है वो ये क्वोशिएंट है जो ये कहता है कि रात के अंधेरे में वो काम नहीं करो जिसकी वजह से दिन के उजाले में अपना मुंह न दिखाओ, ठीक है. रात के अंधेरे में वो काम नहीं करो जिसके वजह से दिन के उजाले में अपना मुंह न दिखाओ. दैट इज, आपको कौन देख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आप देख रहे हैं, ठीक है. अभी स्लाइड. I think another 20 minutes at least. Yeah, go ahead. This we have covered. Go ahead. Go ahead. Because my friend has said that you have got only 10 minutes. Okay. So you can skip on this. So what we have discussed, our thought, feeling and this develop attitude
to other behavior develops habits, and habits develop your personality, and your personality decides your destiny. Okay? So in Bhagavad Gita is said, your mind and senses. Two things are important. Your mind and senses. The senses should be controlled by mind. And this mind, when is controlled, but इसकी आदत है, ठीक है, वो तीन चीजों में जरूर घुसता है. वन इज काम क्रोध लोभ मद, तीन नरक के पाप. ठीक है, रामायण में कहा गया काम क्रोध लोभ मद तीन नरक के पाप. ठीक है, काम क्रोध लोभ और डिजायर लस्ट. ठीक है, ये आएगी है. एंड यू हैव टू रेगुलेट दैट. आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू हैव टू रेगुलेट. इफ यू लुक एट द भगवत महाभारत, व्हाट इज द महाभारत? महाभारत का जो पहला सेंटेंस है भगवत गीता का, एक ही चीज उन्होंने धृतराष्ट्र ने बोली है. पहला सेंटेंस वो बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योद्धा माम का पांडवस्ते किम कुर्वत संजय. हे संजय, ये देख के बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडव के बेटे के बीच में क्या चल रहा है, क्या होगा. ठीक है, इसी में सारा मतलब जो है ना पूरा महाभारत छिपी हुई है. ठीक है, क्यों छिपी हुई है, क्या गलती है भाई इसमें? माम का पांडव, पांडव किसके बच्चे थे? उनके भाई के. तो भाई के बच्चे किसके बच्चे हुए? अब मेरे बच्चे हुए, मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चे हुए ना. बट व्हाट ही सेड, मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे में क्या करता है? तो उसका जो पुत्र मोह था वो ये क्या बोलता है कि माम का पांडव. ठीक है, कि मन, आपके मन में वो लोभ आएगा, मोह आएगा. पूरा जो महाभारत है वो मोह का वो है. ठीक है, मोह, पूरी महाभारत पूरी रामायण लोभ मोह और क्रोध, इन्हीं तीनों चीजों पे चली. तो आपके मन में लोभ आएगा, ठीक है, मोह आएगा और काम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं. हमारा शरीर, हमारा जो हार्मोन्स है वो इसी तरह से डाउट है, हमारी डिजायर उसी तरह से डाउट है. बट व्हाट इज द सेल्फ मैनेजमेंट दैट वी हैव टू रेगुलेट. ठीक है, लोभ आएगा लेकिन लोभी नहीं होगा, मोह आएगा लेकिन मोही नहीं होगा, क्रोध आएगा लेकिन क्रोधी नहीं. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू रिपीट वंस अगेन विद मी. लोभ आएगा लेकिन लोभी यार इतनी आवाज कम है, होंगे आधे ही बोल रहे, एक चौथाई बोल रहे. लोभ आएगा लेकिन लोभी नहीं होगा, मोह आएगा लेकिन मोही नहीं होगा, काम आएगा लेकिन कामी नहीं होगा. वेरी गुड. ठीक है, सो इफ यू मैनेज दिस यू विल बी एबल टू मैनेज दैट. ठीक है, वो इसको छोड़ो, जो टाइम इज लेस. तो एक मिनट बैक में आओ, बैक में आओ. एक चीज और बोलना चाहता हूँ, दैट जब रावण सीता को ले गया, ठीक है, तो सीता से जो तो मंदोदरी समझाने लगी. ठीक है, तो रावण मान नहीं रहा था मैं बड़ा राजा. ठीक है, तो उसने मंदोदरी ने समझाया कि काल दंड कहीं काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जहीं आवत आई तेई भ्रम होए तुम्हारे घर. ठीक है, काल जब आता है मतलब आपकी जब बुद्धि भ्रष्ट हो तो वो क्या करता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है. ठीक है, और धर्म और बल ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें, धर्म और बल दोनों चीजें लाइफ में. आगे बढ़ो. देयर आर 3 C's. ठीक है, कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड कम्फर्ट. ठीक है, ये 3 चीजें होनी चाहिए और दैट शुड बी रेगुलेटेड बाय योर माइंड. ठीक है, कैपेबिलिटी को हिंदी में बोले तो शक्ति, और क्रेडिबिलिटी को हिंदी में बोले तो भक्ति. ठीक है, और इसका पर्यायवाची एग्जैक्ट वर्ड नहीं है बट पर्यायवाची कह सकते हैं. एंड तीसरा कमिटमेंट को अगर बोले तो जज्बा.
ठीक है। तो जीवन में भक्ति बिना शक्ति के, सॉरी, शक्ति बिना भक्ति के निरंकुश हो जाती है। शक्ति बिना भक्ति के निरंकुश हो जाती है, और भक्ति बिना शक्ति और जज्बे के नपुंसक हो जाती है। ठीक है। तो जीवन में रावण और बाली में जो डिफरेंस था और राम में जो डिफरेंस था, वो ये डिफरेंस था कि उनके पास शक्ति थी, बट राम के पास शक्ति भी थी और भक्ति भी थी और जज्बा भी था। ठीक है। हनुमान में शक्ति भी थी, भक्ति भी थी और जज्बा भी था। ठीक है। तीनों चीजें थी, इसीलिए राम की टीम जीती और रावण की टीम हारी। बस। So this Shakti, Bhakti and commitment. If we develop this in three parts, self-awareness, self-regulation and social awareness. जो हमने IQ, PQ की बात की, अब SQ को हम, EQ को हम और आगे further elaborate करते हैं. So then we can go for this self-awareness, carry of self-assessment. इसके आगे बढ़ो, ठीक है? आगे बढ़ सकता हूँ. बस आओ. Self-assessment. When you are in the life, what I can do and what can I not do? What is my capability? Everybody has a different capability, different temperament. ठीक है? You have to see that. ठीक है? जैसे हनुमान जी का एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है? हनुमान जी जब क्रॉस कर रहे थे तो सुरसा नाम की एक राक्षसी मिल गई. सुना होगा? ठीक है? सुरसा नाम की राक्षसी मिल गई. सुरसा नाम की राक्षसी ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी, मेरे मुंह में आओ. ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो, मेरे को जाने दो, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ. बोले नहीं, बिना तो खाए जाने नहीं दोगे. तो उन्होंने कहा बेटा खाना है तो खा. मुंह खोला तो जो मुंह खोला उसका उन्होंने आकार अपना उससे डबल कर लिया. तो उसने अपना आकार, अपने मुंह का भी आकार और डबल कर दिया. ये करते करते 32 योजन कहा जाता है कि 32 योजन तक चला गया. ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, कोई भी इतना बड़ा बात नहीं है. बट द स्टोरी इज 32 योजन जब चला गया तो हनुमान ने क्या किया, छोटा सा मच्छर का रूप बनाया, उनके मुंह में गए और बाहर निकल गया. ठीक है? और उसको रामचरितमानस में इस तरह से कहा गया है, जैसे सुरसा बदल बढ़ावा, तास दूर कभी रूप दिखावा, सत योजन ऐसे ही आनंद कीना, अति लघु रूप पहुंच गई. ठीक है? जैसे जैसे सुरसा ने बदन बढ़ाया वैसे वैसे वो भी बढ़ाते गए, और लास्टली जो है उन्होंने अपना छोटा सा बदन किया और उन्होंने उसे मार. दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट. हनुमान को रियलाइज कि इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा. सो लेट अस कंप्रोमाइज इन द लाइफ. आपको एक लेवल के बियॉन्ड, हमारी मांसपेशियों के, हमारी फिजिकल स्टेमिना की एक लिमिट है, और उस लिमिट तो देन यू हैव टू असेस योरसेल्फ. देन इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस. इमोशन आई ऑलरेडी डिस्कस विद. ठीक है? सपोज हियर आई विल गिव वन एग्जांपल कि हनुमान जी भूख से जान जा रही थी. ठीक है? और सब कुछ बिल्कुल उनके साथ नहीं चल रहा था. सीता जी मिल नहीं रही थी. ठीक है? अगर हनुमान जी उस समय ये कह दें, सोचते यार छोड़ो, मारो गोली, यार सीता मिले ना मिले, कर वापस चलते हैं, भूख से मर जाएंगे तो ज्यादा खराब हो जाएगा. ठीक है? तो क्या होगा? रामायण होती नहीं. तो उन्होंने कहा, तो लेकिन उन्होंने अपना वो जिद नहीं छोड़ी, अपनी जो है एंथुसियाज्म नहीं छोड़ा. एंड वो क्या करके देखा कि एक जगह तुलसी का पौधा लगा हुआ है, चित्रों पे, एक कमरे के चित्र पे वो राम के बाण लगे हुए हैं. तो ये सेट किया यहाँ कुछ बात बन सकती है. तो वहां बाद में विभूषण. दैट इज द इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, हाउ यू. ठीक है? देन कैपेबिलिटी बिल्डिंग. पूरी रामचरितमानस का जो स्टार्ट है, ठीक है, पूरा सॉरी जो अपनी हनुमान जी की चौपाई स्टार्ट होती है. श्री गुरु चरण सरोज रट निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमर्श जोदाय पर, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव हरो कलेश. क्या चाहिए? बल, बुद्धि और विद्या. मतलब 3 C's है. 3 C चाहिए. IQ, EQ, PQ है और SQ, ये 4 चाहिए. ठीक है? दैट इज, इसीलिए सब लोग जो हनुमान जी की चालीसा तो करके आते होंगे, आधे तो करके आते ही होंगे. हैं?
आप सोचना कि वो क्यों करते हैं, ठीक है, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस मेक्स ए डिफरेंस, ठीक है। मैं थोड़ा पास चलूंगा, है ना, लिमिटेड टाइम। सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। हनुमान जी जब लंका जा रहे होते हैं तो मैनाक पर्वत निकल के आता है। मैनाक पर्वत सोने का पर्वत होता है, ठीक है। वो बाहर निकल के आता है और बोलता है मेरे यहाँ पे थोड़ी देर आराम करो। तो उनकी इज्जत को रखते हुए मैं हनुमान जी उसको छूते हैं और वो वापस आगे चले जाते हैं। उसको वहां गया, कहा गया तय मैनाक सोई श्रम। वो बोलते हैं राम का जब तक मैं कर नहीं लूंगा तब तक वो यहाँ नहीं। ये बेसिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर पीपल में। जब आप कुर्सी पे बैठेंगे, आज तो नहीं लेकिन आज से 5 साल 10 साल बाद जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टॉप कुर्सी पे बैठेंगे, ठीक है, तो आपको लोग वो करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे कि सब ऐसा करो, ठीक है। सब आप आइए ना, आपको होटल में वहां रहेंगे, खाना खाएंगे, ठीक है। सब आप आइए ना, घूमने आइए, सब दमन आइए, सब वो ड्राई एरिया भी नहीं है, खूब मिलेगा, आराम से पिएंगे बैठ के, है आने जाने की व्यवस्था में कर दूंगा सब, ठीक है। आपको कुछ नहीं करेगा, अगर किसी भी तरीके से आप उसके ढांचे में नहीं आ रहे होगे तो एक मिठाई का डब्बा लेके आएगा, ठीक है, और बोलेगा सर अंबाजी गया था, आपके लिए प्रसाद लाया, ठीक है। अब आप प्रसाद के नाम पे मना नहीं कर पाओगे और वहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी पूरी बरकरार की है, पूरा कंट्रोल कर रखा है, सेल्फ रेगुलेशन कर रखा है कि क्लास में मेरे को सर ने पढ़ाया था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब तो मुझे तो खाना पड़ेगा, दिस इज व्हाट बीइंग डन विद मी आल्सो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसमें से एक पीस ले लेता हूं, उसको बोलता हूं बाकी सबको प्रसाद बांट जाओ, ठीक है। तो क्या बोलता, नहीं सब बाहर के लिए लाया हूं, नहीं आप बांट के आओगे तो ज्यादा अच्छा। देन वो उसको पता लग जाता है कि यार ये बंदा झांसे में नहीं है। सो दैट इज हाउ यू सेल्फ रेगुलेट, आगे बढ़ो, ठीक है। और जब भी आप लीडर बनो, जब भी आप मैनेजर बनो, तो एक चीज ध्यान रखना, वन इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज ऑफ लिसनिंग। सोशल अवेयरनेस, जब ईक्यू की बात करते हैं तो ईक्यू में लिसनिंग एक सबसे बड़ी क्वालिटी, ठीक है। रामायण में कहा गया सचिव वैद गुरु दीन, जो प्रिय भोले भया राज धर्म तंदीन कर होए बिगीना। जब वो सचिव मतलब सेक्रेटरी आपका और वैद और गुरु, ठीक है, टीचर जो आपको मतलब शिक्षा देता है, अगर वो झूठ बोलने लग जाए आपको खुश करने के लिए, तो आपका समझ लो सत्यानाश होगा, ठीक है। लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। लिसनिंग का मतलब नॉट हियरिंग, इट इज मोर देन दैट, you are understanding the environment. One of the example I give is from the politics, ठीक है, राहुल गांधी। तब राहुल गांधी who was पप्पू before 5 years or 4 years, ठीक है, how he is talking now, what he did, he traveled all the across the in India from north to south, east to west, and what he did, he listened to the people. And he, after listening, he could understood कि what is the solution, ठीक है। On the contrary, ठीक है, with the due respect to Modi ji, ठीक है, he could not listen because he was in power. उनके पास लिमिटेशन थी, वो जाके हर ऐसे मिल नहीं सकते, ठीक है। तो he became away from the people, and everything is changing and तो आपको लिसनिंग एक क्वालिटी, आपको लिसनिंग का मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उतना ही नहीं, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है वो भी समझो। सो इफ यू लिसन देन डेफिनेटली, देन एक क्वालिटी ऑफ एम्पैथी। तेईसन नाथ में ये जो है एम्पैथी, जब हनुमान जी मिले रावण को, उसको राम को, ठीक है, तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ हो गई, मेरी वाइफ को किडनैप कोई कर गया, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी वो, अच्छा चलो आपके उस रिलेटिव वाइफ को कोई किडनैप करके लेके गया, ठीक है। सो ही कुड अंडरस्टूड द एम्पैथी। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, वो अदरवाइज नहीं समझते, लेकिन उन्होंने उनके दर्द को समझा। तो जरूरी नहीं कि आप उस पीड़ा से गुजरे हो, बट आप उस दर्द को समझते हैं,
empathy is the best example is whether the shoes of the person pinches only the person knows. आपके जूता आपका कहाँ काट रहा है वो आपको पता है, मेरे को नहीं पता। मेरा जूता कहाँ काट रहा है वो मेरे को पता है। तो दैट इज द एम्पैथी। तो थोड़ा एक यूनिवर्सल चाहिए, एक ये क्वालिटी दैट इज मैं वो शुरू से स्टार्ट किया कि जब तक आप अपने को, अपने कॉज को, अपने आप को यूनिवर्सल मतलब लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लोगों से नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे आगे। नाउ आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टुडे सेशन, दैट इज आई हैव मेड दिस 5-6 पॉइंट्स, ओके, वाइटल। दिस इज माय डेवलप्ड बाय माय ओन, ठीक है, कि आप ये तो सारी कहानी सुन ली, वे कहानी सुन के करें क्या? आपने तो आगे रामायण पढ़ा दी, महाभारत पढ़ा दी, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाई, लेकिन थोड़ी बहुत तो पढ़ाई है। लाइफ में मैं क्या करूं? रामायण सुनने से अगर सब लोग ठीक हो जाते तो मैं भी ठीक हो जाता, सब हो रहा है, ठीक है। तो हाउ आई शुड कर, तो वाइटल मतलब जैसे कोई पेशेंट जब आता है ना डॉक्टर के पास, तो क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है चेक करके वाइटल्स चल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, पुतलियां काम कर रही हैं, नब्ज चल रही है, मतलब वाइटल्स चल रहे हैं। तो अगर आप वाइटल आपके चलते रहेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। वाइटल में पहला है वैल्यूज, इंटेंट, टेम्परामेंट, अराउंड द क्लॉक, लाइफ, विजन एंड गोल, स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, ठीक है। वैल्यूज क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, हाउ यू हेल्प द पीपल। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आज से कर लेना, अगर आपने एक चीज जो मैं बोल रहा हूं अगर आपने वो कर ली तो आपका जीवन डेफिनेटली डिफरेंट होने वाला है आज से। वो क्या कि रात को जाके सोते वक्त, सोने से जस्ट 5 मिनट पहले बेड पे चले, डोंट गो लुक की मोबाइल में, यूट्यूब में देख के आप व्हाट्सएप पे देखते देखते सो, ठीक है। यू कीप योर मोबाइल 1 आवर बिफोर अवे, 1 आवर या 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट अपने आपको देना रात को, ठीक है। एंड दिस यू मेक इट ए हैबिट ऑफ योर लाइफ। इस 15 मिनट में आप ये सोचना कि आज मैं सुबह उठा था, ठीक है, सुबह उठी थी, उसके बाद मैंने क्या क्या किया और जो मैंने किया क्या वैसे ही करना चाहिए था, ठीक है। अगर वैसे नहीं करना चाहिए था तो क्या करना चाहिए था? So लाइफ में, वेलकम मैडम, तो लाइफ में क्या वैसे ही करना चाहिए था जैसे मैंने आज सुबह किया, ठीक है। सुबह शाम को सोते वक्त 15 मिनट अपने आप को देना और वहां सोचना कि क्या वैसे ही करना चाहिए था जैसे मैंने किया, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये जो मैंने किया ये सोशल वैल्यू से मैच करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। मान लो मैं अपने ऑफिस गया और ऑफिस से एक पेन उठा करके मैंने अपनी जेब में रख लिया, वेदर दिस मैचेज विद माय सोशल वैल्यूज और नॉट, ठीक है। इफ यस, ओके, इफ नॉट देन टुमारो आई विल नॉट डू इट, ठीक है। देयर इज अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, पढ़ा है, सुना? डेली आप अपनी लाइफ में थोड़ा इंक्रीमेंटल वैल्यू लाएंगे, देन डेफिनेटली योर लाइफ विल बी बेटर एंड one day you will find, or somebody will find, अरे ये तो बहुत बदल गया, so that is value and belief, ठीक है। Then go ahead. Interest, what is your interest, that you look at, ठीक है, and according to your interest you develop yourself। everyone ने take it, हाँ नंबर 2। Then third, temperament, what is your temperament, ठीक है। There are some inborn qualities, something definitely, may I leave this slide because time is very so you can go ahead. Life mission and meaning of the life, whatever you do it you connect with the social values, so how you are going to contribute with the society, then only whatever I have taught about Ramayana, Mahabharata, whatever I have discussed, then it will be meaningful, otherwise ये आपको
क्लास की तरह आकर के पढ़ के चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सो दैट यू हैव टू मेक योर गोल्स स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट, टाइमली, इवैल्यूएट एंड रिएक्ट। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी तो ठीक है, दैट इवनिंग, नाइट बिफोर गोइंग, just evaluate and review. No, go ahead. ठीक, बाकी leave it. Last slide, ठीक है। कि जो मैंने कहा ये सब का एक ही निचोड़ है, ठीक है। रामायण में या रामचरित मानस में लास्टली जब राम और रावण का युद्ध हो रहा होता है, ठीक है, और रावण बड़े रथ पे बैठ के आता है और राम जमीन से उस पर वार करते हैं, ठीक है। बाद में भले ही हनुमान जी ने उनको अपने कंधे पे बैठा लिया, तो विभीषण को बड़ा दुख होता है, यार ये बंदा, ये जो उस पे आया है उससे कैसे लड़ेगा, ठीक है। तो ही से कि भाई आप कैसे लड़ोगे, आप तो ये तो छोटे से जमीन पे थे और वो तो बड़े रथ पे है। देन व्हाट राम से, सौरज धीरज देते रथ चाता, सत्यशील दृढ़ ध्वज बना, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता दे, शौर्य धर्म धैर्य जिस रथ के पहिए हो, ठीक है। यीशु भजन सारथी सुजाना, वीरत चरण संतोष कृपा, ठीक है। ईश्वर का भजन और चतुर साथ वैराग्य ढाल है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पढ़ लेना आपको, ठीक है। तो ये अगर आप जो है धर्म, आपका सौरज धीर, ठीक है, आप होगा, आपका जो सारथी है वो ईश्वर पे भरोसा, ठीक है, वो होगा, और आपका मन साफ होगा, आप धर्म के रास्ते पे चल रहे होंगे, तभी आप सक्सेस। और अगर ये होगा तो आपको किसी रथ की जरूरत नहीं, ये जो जिस पे ये रथ होगा वही आदमी विजयी होगा। आप किस रथ पे बैठे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई एम कंप्लीटिंग, बट बिफोर कंप्लीटिंग आई विल जस्ट say one sentence, rather one I'll quote, not एक क्या बोलते हैं, शेर शायरी से खत्म करता हूँ, ठीक है। क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर। आप लोग आपस में कंपैरिजन करते होंगे, ठीक है। क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, कब तक बनेगा तो किस किस से बेहतर, किस किस से बेहतर, ठीक है। तेरी मिसाल तो खुद है, बना ले तू खुद से बेहतर। थैंक यू सो मच।